guys, welcome to Chemistry Study by Diya. Today I am here with another video. Very important topic from exam point of view is the Carnot cycle. The Carnot cycle was named after a French engineer, Sadi Carnot. He was interested in the efficiency of the steam engine and other heat engines that derived which convert किसको convert करते हैं heat into work, heat को work में convert करते हैं. He observed that the maximum conversion of heat into the work is possible in cyclic process in which all the necessary steps are carried out reversibly. Such a reversible cycle is called the Carnot cycle, and an engine operating on the basis of this hypothetical cycle is called the Carnot engine. ठीक है. So a reversible cycle in which maximum conversion of heat into the work is called the Carnot cycle, and irreversibly होता है, steps होते हैं, and ठीक है, and which is a process in which possible at all the steps are reversible, and in which operate in all the hypothetical cycle is called the Carnot heat engine. ठीक है. सो जो कार्नोट साइकिल क्या होता है, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और रिवर्सिबली, एंड उसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इंजन ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन. Next is an expression for the efficiency of the Carnot engine may be derived using a schematic diagram such as पहले isothermal होता है, that is the system contains of 1 mole of an ideal gas filled in a cylinder which is isolated and fitted with a frictionless piston. That is the पहले isothermal, फिर adiabatic expansion, फिर इस बार isothermal compression and the एडियाबैटिक कंप्रेशन. ठीक है. एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में बताया हुआ है. आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोथर्मल इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एडियाबैटिक मीन्स नो हीट इन्वॉल्व. ठीक है. आइसोथर्मल इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबैटिक मीन्स नो हीट. अब ये देखो, ये डायग्राम्स देख लो. पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया हुआ है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में बताया हुआ है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन के बारे में बताया हुआ है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में बताया हुआ है. ठीक है. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, द सिलेंडर कंटेनिंग 1 mole of ideal gas having volume V1 is placed on the source that the gas absorbs the quantity of the heat Q2 and undergoes the isothermal reversible expansion to the volume V2 indicated by curve AB. कर्व ए बी क्या दिखाता है, ये देखो आइसोथर्मल बताता है. कर्व ए बी क्या बताता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताता है कर्व ए बी. ठीक है. ये हमारा होगा W1 इज इक्वल टू R2 लेन V2 बाई V1. ठीक है. फिर उसके बाद एज इन द आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U 0, इंटरनल एनर्जी 0, द वर्क डन इज इक्वल टू द हीट ऑब्जॉर्ब Q2. सो W1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू R2 लेन V2 बाई V1. ठीक है. वर्क डन by the system is taken as the negative according to the IUPAC convention. Next is adiabatic expansion. The cylinder is removed from the source and keep on the insulating base. The gas is allowed to expand adiabatically from the volume V2 to V3. In this step, the temperature decreases to T1, the temperature of the sink. ठीक है. This path is shown by the curve BC. अब कर्व हमें एडियाबैटिक बताती है, इन विच द हीट अब्जॉर्ब्ड by the system is 0 as expansion takes place under the adiabatic conditions. The work done by the system W2 is given by, ये देखो, is given by, ये देखो, W2 is equal to CV T1 minus T2 minus CV is equal to T2 minus T1. Next is isothermal compression. This path is shown along the curve CD. In this step, this cylinder is removed from the isolating base and is kept in the contact with the sink at the temperature
the T1 the gas is compressed thermally till the volume decreases from V3 to V4, ठीक है. W3 is equal to RT ln V4 by V3. Q1 is equal to W3 is equal to RT1 ln V4 V3. W4 in this adiabatic compression, in this step the cylinder is moved from the sink and placed on the isolating base. The gas is compressed adiabatically along the curve DA. The volume reduces from V4 to V1, ठीक है, and the temperature of the gas rises from T1 to T2. W4 is equal to CV T minus T2 minus T1. W1 W2 W3 W4 अब इन तीनों को प्लस कर दोगे, ये वैल्यूज जो भी आपके पास आई तो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1, फिर इसकी वैल्यू डाल दोगे आप, और फिर इसके बाद ये टी वी फाई वन कॉन्स्टेंट, फिर T2 V2 फाई वन T1 V1 T1 V3 फाई माइनस वन, ठीक है. ये फिर डिवाइडिंग द इक्वेशन कर दोगे, फिर ये वैल्यू जो आई आपके पास इसको इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दोगे. ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये जो आपके पास वैल्यू आई ना, ये जो आपके पास वैल्यू आई इसमें आप ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. Hi guys, welcome to Chemistry Study by Diya. Hope you are fine. Today I am here with another video with the important video Carnot cycle. Carnot cycle क्या होता है? कार्नोट साइकिल देखो, पहले कार्नोट साइकिल होता है जिसमें हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है. कार्नोट साइकिल क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. ये इसका ग्राफ देख लो, प्रेशर और वॉल्यूम का आपका ग्राफ है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है. और कार्नोट साइकिल क्या होता है? इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इसको कार्नोट साइकिल. और इंजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन, ठीक है, हाइपोथेटिकल साइकिल के बीच में. सो कार्नोट साइकिल की आप डेफिनेशन बोल सकते हो, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, कन्वर्ट करना, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, उसको कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल बोलते हैं. इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इट इज़ कॉल्ड अ कार्नोट साइकिल. और द इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन, ठीक है. ये आपके पास इसका ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम का इसका ग्राफ है. अब इसके बाद मैंने आपको उसके बतानी है आइसोथर्मल. इसमें चार होती है: आइसोथर्मल, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, और एडियाबैटिक. स्पेलिंग देख लेना, एडियाबैटिक, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एंड फिर आपके पास दूसरा है, ये देख लो दोनों. फिर उसके बाद आपके पास आइसोथर्मल, कंप्रेशन, नहीं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एरिया बैटिक कंप्रेशन. ये देखो चार. पहले है इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. ये इसका ग्राफ है, ग्राफ में पास से दिखा देती हूँ, इसका ग्राफ है. इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं इसकी डेराइव पार्ट आपको बता रही हूँ कि इसको ड्राइव कैसे करना है. आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर मीन्स कॉन्स्टेंट. एडियाबैटिक मीन्स नो हीट इन्वॉल्व, हीट का W वर्क ज़ीरो होता है इसका, ठीक है, ठीक है. ये देख लो, पहले ये देख लो पूरा, ठीक है. इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. कार्नोट साइकिल इज अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर मीन्स कौन से? एडियाबैटिक मीन्स हीट, नो हीट W ज़ीरो. आइसोथर्मल भी कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन. अब इसको ड्राइव करते देखो, देख लो पहले चीज़. अब कार्नोट साइकिल की डेफिनेशन लिखो, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड इट इज़ कॉल्ड अ कार्नोट साइकिल एंड द इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड अ कार्नोट इंजन, ठीक है. अब इसको ड्राइव करेंगे. प्रेशर और वॉल्यूम का देख लो ग्राफ में, ग्राफ एक बार एक्सप्लेन कर दूँ. ये आइसोथर्मल है, आई का मतलब आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, ठीक है, ये भी आइसोथर्मल है. और ये एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है. अब इसको हमने प्रूव करना है. पहले हमने करना है आइसोथर्मल
आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहले हमने करना है। ये ग्राफ को देख के, ग्राफ देख लो पहले, ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, देखो ग्राफ देख लो। अब है द सिलेंडर कंटेनिंग 1 mole of ideal gas having volume V1 is placed on the source and heat reservoir at the temperature T2. The gas absorbs quality of heat Q2 and undergoes isothermal reversible expansion to the volume V2 and to the curve AB. Curve AB भी क्या बताता है? isothermal expansion बताता है। अब हमने इसका करना करें, ये देखो W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, ये W1 वर्क डन का बताया हुआ। अब इसमें इसको हमने W1 किसके बराबर हो गया? W1 किसके बराबर हो गया? Q2 के, ठीक है। ये देख लो पहले, ये देख लो आइसोथर्मल W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, W इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, ये ठीक है। हमें पता है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डेल्टा U क्या है पहले बताओ? डेल्टा U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, ये लिख लो, इंटरनल एनर्जी लिख लेना, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास हो गया। तो W1 की वैल्यू आपके पास आ गई, W1 की वैल्यू आ गई। W1 की देखो, W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, W1 इज इक्वल टू Q2 R T2 लेन V2 बाई V1, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 इंटरनल एनर्जी। फिर अब हमने करना है आगे कितनी आइसोथर्मल की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई, ये याद कर लो पहले। W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, ये आ गई। अब हमने करना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब हमने करना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखो, जब हमारे पास हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है W2 लेना है, CV इज इक्वल टू T1 T2, तो ये आपके पास हो गया W2 इज इक्वल टू C माइनस CV इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। W2 इज इक्वल टू माइनस CV इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो W2 इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1। द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड केप्ट ऑन आइसोलेटिंग बेस। द गैस इज अब्जॉर्ब्ड टू एक्सपैंड abruptly from the volume V2 to V3. In this step, the temperature decreases to T1 and the temperature of the sink. The path is shown by the curve BC. BC के बारे में ये शो करता है, BC, ये देखो BC, ये B, ये एडियाबैटिक का बताया हुआ BC. In the path is showed by BC. The heat absorbed by the system is 0. Expansion take place under adiabatic conditions. ये देख लो W2 की वैल्यू आपके पास आ गई ग्राफ से। अब आगे चले, आगे हमने करना है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगला हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन का देख लो, दैट इज W3 इज इक्वल टू RT लेन V4 बाई V3, ये आ गया, ये आ गया W, इसको हमने Q1 से डिनोट करना है, Q1 माइनस Q1 RT लेन V4 V3, ये देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन का, ठीक है। ये आपके पास W2 की वैल्यू होगी, W3 की वैल्यू होगी, और W1 की वैल्यू क्या थी? W1 की वैल्यू थी, यहाँ लिख रही हूँ W1 की वैल्यू RT1 लेन V, ये थी WQ2 RT1 लेन V2 बाई V1, ये W1 की वैल्यू होगी, ये W1 की वैल्यू होगी, ये देख लो W1 की वैल्यू, ये W3 की वैल्यू, ये W3 की वैल्यू,
ठीक है, ये W3 की वैल्यू और ये W2 की वैल्यू। ये देखो, अब हमने W4 की वैल्यू निकालनी है। देखो, ये देख लो पूरा, पहले अच्छे से दूर से दिखा रही हूँ, देख लो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। W1 की वैल्यू भी आ गई, W2 की वैल्यू भी आ गई, W3 की भी आ गई। अब हमें W4 की चाहिए। वर्क डन मीन्स कार्नोट साइकिल क्या कहता है कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड द इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिक्स ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन। करना है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक का W4 इजिकल टू CV अब हमने W4 की वैल्यू निकालनी है ना, ये हो गया T2 माइनस T1। ये देखो, W4 की वैल्यू हमने निकालनी है, ये अपने पास W4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो W1 की वैल्यू क्या थी एक बार बताओ मुझे। RT2 लेन V2/V1 ये। फिर W2 की वैल्यू भी निकालनी माइनस CV T2 माइनस T1 ये। ठीक है, अब W3 की वैल्यू निकाली हमने। W3 की वैल्यू ये Q1 RT1 लेन V4/V3 ये। और W4 की वैल्यू हमने निकाली माइनस W4 की CV T2 माइनस T1 ये 4 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। देखो, पहले ये, ठीक है, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये और चौथी ये। ये आपके पास चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई। एक बार देख लो ग्राफ से देख लो, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की। देखो देखो, सही है। चले आगे, इसका टोटल निकालना है। पहले ये देख लो अच्छी तरह, टोटल निकालना है। टोटल देखो कैसे निकालना है। W इजिकल टू RT1 लेन V2/V1 ये प्लस साथ में CV माइनस T2 माइनस T1 ये। ठीक है, प्लस साथ में RT2 R यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 लेन 4/3 ये देखो मैंने। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ग्राफ को रब कर रही हूँ। एक ग्राफ अब बना ही लिया आपने। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी जगह हो जाएगी बस। ये देखो पहले। ठीक है, ये हमने 1 की वैल्यू डाली, W1 की वैल्यू डाली है, W2 की वैल्यू डाली है, W3 की वैल्यू डाली और W4 की भी है T2 माइनस T1। अब देखो, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो गए। ये देखो, ये थी ना, अब CV T2 माइनस T1 सेम ये कट गए, तो आपके पास ये बचा। तो W आपके पास टोटल आ गया R2 लेन V4/3 ये प्लस RT1 लेन V2/V1 ये आपके पास आ गया। ये टोटल W वर्क डन आ गया। ठीक है, दैट इज़ ए कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, दैट इज़ अ कार्नोट साइकिल एंड द साइकिल इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन। ये आपके पास वर्क डन टोटल आ गया। ये देख लो दूर से, वर्क डन टोटल आ गया। अब आपका वर्क डन Q इजिकल टू Q2 प्लस माइनस Q1 ये हो गया। तो Q आपके पास हो गया टोटल। Q कितना आ गया, R2 लेन V4/V3 ठीक है, प्लस RT1 लेन V2/V1 शुरू से लेकर अब तक देख लो, स्टार्टिंग से एंड तक देख लो। देख लो, पास से दिखा देती हूँ मुझे। पहले क्या किया हमने, यहाँ पर W1, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, W1 की वैल्यू डाली। उनको समझा, अब आपको समझा देती हूँ ना। पहले मैंने क्या किया, मैंने W1 की वैल्यू डाली। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर W2 की वैल्यू डाली। ठीक है, फिर यहाँ पर W3 की वैल्यू डाली ये वाली, फिर W4 की वैल्यू डाली। ये देख लो। ठीक है, मैंने चारों की वैल्यूज़ को प्लस कर दिया W को। फिर ये आ गया CV T2 माइनस T1 सेम ये इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर ये आ गया मैंने, बस फिर Q की वैल्यू ये डाल दी। अब आगे देखो, ये देख लो शुरू से लेकर एंड तक पहले, फिर आगे देखते हैं।
कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। हीट कार्नोट साइकिल क्या होता है, इंजन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क करते हैं एंड इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल, इसको कार्नोट इंजन कहते हैं। ये देख लो पहले, और मैंने पीछे ग्राफ का भी बता दिया था आपको। आगे चले, अब हमारे पास देखो क्या आया था, W इज इक्वल टू RT2 लेन V4/V3, ठीक है, ये आया था। साथ में प्लस लेन V2/V1, ये आया था, ये देख लो यही आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आया था Q इज इक्वल टू Q2, टोटल निकालना है हीट ऑब्जॉर्ब, ये आया था हमारे पास Q इज इक्वल टू RT2 लेन V4/V3 प्लस RT1 लेन V2/V1, ये आ गया, देख लो पहले, ये आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, V2 TB कॉन्स्टेंट, TB रो 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TB 2 to T1 V3, ये आया। चलो मैं इसको नीचे के ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देख लो पहले देख लो, ये देख लिया। अब देखो TB रो कांस्टेंट, क्या है, फिर T2 V2, ये है, देख लो पहले। फिर इसके बाद T2 V1, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब V4 इंटू V3, ये आपके पास V1 V2 आया, देखो यही है। अब क्या करना है, W की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी R2 लेन V4/V3, यही निकाली थी, प्लस RT1 लेन V2/V1, यही है। अब आपने यहाँ पर V4 V3 की वैल्यू है, इसमें पुट करो RT, मैंने क्या किया, ये आपके पास W टोटल की वैल्यू पीछे निकाली थी, अब इसमें V4 और V3 की वैल्यू पुट करो, पुट कर दी, इसमें कर दी। अब इसमें R कॉमन निकाल लो, ये देख लो पहले शुरू से यहाँ तक देख लो, ठीक है। अब मैंने W की टोटल वैल्यू आई थी, उसमें हमने V4 और V3 की वैल्यू डाल दी जो आई, ठीक है। और इसमें से अब हमने क्या किया, W इज इक्वल टू R, यहाँ पर देखो R कॉमन है, R कॉमन निकाल लिया लास्ट में मैंने, और T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1 लेन V1/V2, ये आपका टोटल एक्सप्रेशन हो गया, ये देखो, ठीक है। मैंने इसमें लास्ट में क्या किया, लास्ट में देखो मैंने R कॉमन निकाल लिया, बाकी सब में T2 माइनस T1 हो गया और लेन V1/V2 हो गया, ये देखो, ये आपकी कार्नोट साइकिल हो गया। कार्नोट साइकिल क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क करता है एंड इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल वैल्यू इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन, ये देख लो, ये ठीक है। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड कार्नोट इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन, ये देखो, ठीक है। लास्ट में मैं फिर बता रही हूँ, लास्ट वाले अगर किसी को डाउट है, लास्ट वाले में मैं फिर बता रही हूँ कि हमने R कॉमन लिया है, बाकी T2 माइनस T1 हो गया और लेन V1/V2 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछ लो, ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछ लो, ठीक है।